Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So student, in this video we discuss about formula of compound, means how we prepare different compound by using valency concept. So to revise this concept we use a simple method, that is valency. I have done about valency in previous video. If you all are new in this video, then you can watch our previous video that is present in playlist. So let us start new video with new concept, that is formula of compound. So I recall few concept that is present in previous video because this concept revised here. By using same concept we find the valency of compound, valency of element and prepare formula of compound. So let us start. So I take few elements like hydrogen, chlorine, fluorine, sodium and some more potassium, oxygen. There are some element. First, how we find valency? So to find valency there is several rule. First we need atomic number, and just after we do general electronic configuration. So here 1 2 8 8 2 8 7, and here 2 7 2 8 8 and 2 8 8 1, here 2 and 6. So in previous video we discussed about the valency, means if last electron, that is valence electron, is 4 or less than 4, then valency always equal to number of valence electron, means last electron. This is last electron, it means it is valence electron, it is valence electron. And if it is less than 4 or 4, then valency is equal to valence electron. Here it is greater than 4, it is 7, so we find valency equal to 8 minus valence electron, that is valency is 1. So here chlorine have 1 valency, hydrogen have 1 valency, and here in case of fluorine 2 and 7, last electron means valence electron, it is greater than 4, then valency equal to 8 minus valence electron. Here fluorine also have valency 1. In case of sodium, there is 1 valence electron present in outermost shell, means its valence electron is 1 less than 4, yes, so its valency is equal to number of valence electrons. So here valency is 1. And in case of potassium, its valency also 1. But in case of oxygen, here outermost shell have 6 electrons, so it is greater than 4. So here valency is 8 minus 6, that is 2. Okay. So first we need valency. If we not know valency of any element, then we not able to find a form any formula of compound. So it is very simple. चलिए देखते हैं. फर्स्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड. एक्चुअली जब बात आती है फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला जानना चाहिए. फार्मूला तुम लोग बना लेंगे पर जानना चाहिए होता क्या. एक्चुअली इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन कंबाइंड फॉर्म. अगर कोई कहता है फार्मूला ऑफ एलिमेंट, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स होता. बट फार्मूला ऑफ कंपाउंड इसका मतलब क्या है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कंबाइंड फॉर्म ऑफ एलिमेंट. कंपाउंड कब बनेगा, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इस सिचुएशन में बनता है कंपाउंड. तो चलिए देखते हैं. जैसे फार्मूला क्या है, हम कह सकते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम. ठीक है. तो चलिए, ये तो पता चल गया फार्मूला क्या है, किस चीज़ का सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, फार्मूला कहलाता है. पर फार्मूला ऑफ कंपाउंड कब बनता, आपने पिछले चैप्टर में सीखा था, जब 2 या 2 से अधिक एटम मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते तो जो फॉर्म होता क्या बोलते हैं, कंपाउंड. चलिए, तो हम बात करते हैं फार्मूला ऑफ मेटल हाइड्राइड. पहली हेडिंग होगी फार्मूला ऑफ मेटल हाइड्राइड.
चलिए यहाँ पे कुछ नए टर्म यूज होंगे जिन्हें देखकर आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अब हमने एक नया टर्म क्या लिखा, मेटल हाइड्राइड। एक्चुअली क्या है मेटल हाइड्राइड, इसका मतलब ये होता है मेटल प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू मेटल हाइड्राइड। ठीक है, मतलब कि जब किसी मेटल से कोई हाइड्रोजन अपने बैलेंसी के अकॉर्डिंग ऐड हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्राइड बोलते हैं। चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि आपको बनाना है कोई मेटल जो कि होना चाहिए MH टाइप का, या फिर MH2 टाइप होगा, MH3 टाइप का होगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा, M मतलब क्या होगा, एनी मेटल, M मीन्स एनी मेटल, H मीन्स हो जाएगा हाइड्रोजन। अब यहाँ MH1 टाइप का मतलब क्या होगा, ऐसा मेटल होगा जिसकी वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी अभी आपने निकाली थी 1 होती है, और यहाँ पे जो मेटल होगा उसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और हाइड्रोजन की ऑलरेडी 1 है। यहाँ पे जो मेटल होगा इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, इसकी कितनी होनी चाहिए, 2, और इसकी होनी चाहिए 1। तो आपको अगर नहीं पता तो क्या करते हैं, जैसे हमने कहा भाई एक आप फार्मूला बनाइए जिसमें आप ले लीजिए, आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हमने कहा कि आप ले लीजिए NH। तो NH मतलब ये सोडियम का हमें क्या बनाना है, फार्मूला बनाना। तो ऐसे नहीं बनेगा, पहले वो करना क्या होगा, सोडियम लिखना होगा, हाइड्रोजन लिखना होगा, इसके बाद इसकी बैलेंसी लिखनी होगी। अभी बैलेंसी निकालना आपको सिखाया कैसे, एटॉमिक नंबर इसका लिखिए, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 281 ये 1, तो इसकी बैलेंसी कितनी 1 है, और इसकी बैलेंसी कितनी 1। अब आप क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस कर देंगे, मतलब कि इसको क्रॉस करके जो इसकी वैलेंसी है, मतलब कि जो मेटल की वैलेंसी है वो आपके हाइड्रोजन के लिए बन जाएगा एटम का नंबर, और जो आपके हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो आपके मेटल के लिए बन जाएगा एटम का नंबर। तो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा NH। ठीक है, जैसे अगर हम ले लें मैग्नीशियम, अगर ले लें हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 होती है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं, मैं अब निकालना नहीं सिखाऊंगा, इधर हो जाएगा 1। तो जब इसका हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये 1 आ जाएगा Mg के नीचे, तो M को हम 1 को लिखते नहीं, जैसे मैथ में x की पावर आप 1 नहीं लिखते ना, उसी तरीके से, और ये 2 चला जाएगा कहाँ, हाइड्रोजन के बिलो साइड में। तो आपका ये फार्मूला बन के क्या आया, MH2, मतलब ये क्या है, मेटल हाइड्राइड। किस मेटल का है, मैग्नीशियम का है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल करते ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे हम ले लेते हैं नाइट्रोजन, और इधर ले लेते हैं हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, हाइड्रोजन की होती 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, तो ये 1 आ जाएगा नाइट्रोजन के बिलो साइड में, और ये 3 हो जाएगा हाइड्रोजन के। तो ये आपका बन गया क्या, NH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। ये क्या है, मेटल हाइड्राइड की तरह है, किसी कंपाउंड का हमने हाइड्राइड बना दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था, हमने बैलेंसी को लिखा दोनों के ऊपर, और एक की बैलेंसी दूसरे के सफिक्स, मतलब कि आप कह सकते हैं एटम का नंबर बना दिया, और दूसरे वाले का जो बैलेंसी था वो पहले वाले का एटम का नंबर बना दिया। इस तरह से हम लोग क्या किए, किसी भी कंपाउंड का हाइड्राइड बना लिए। चलिए अब हम लोग ऑक्साइड बनाने का प्रयास करते हैं, बहुत सिंपल है। सो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी फार्मूला ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड भी कह सकते हैं, फार्मूला ऑक्साइड्स। ठीक है, अब जैसे अगर ये मेटल ऑक्साइड बनेगा, ये आपकी हेडिंग भी है, अगर मेटल ऑक्साइड बनाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ऐसा नहीं नॉन मेटल का नहीं बनेगा, बन सकता है, तो मुझे सिर्फ समझाना, आप किसी का बनाइएगा, सेम कॉन्सेप्ट है तो आप कर सकते हैं। जैसे कोई मेटल हो जाएगा उसके साथ ऑक्सीजन हो जाएगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड होगा। तो ये ऑक्साइड का फार्मूला हो गया, ऑक्साइड का कंपाउंड हो गया। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज़ क्या लेनी, जैसे आपने कोई ले लिया मेटल, सोडियम ले लिया, इधर ऑक्सीजन,
तो अभी आपने ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या निकाली थी, एटॉमिक नंबर 8 2 6, 8 - 6, वैलेंसी कितनी आई थी 2, मतलब ये वैलेंसी इसकी हमेशा क्या रहेगी 2 रहेगी। सोडियम का अभी आपने निकाला था कितना आया था 1। अब क्या करेंगे भाई साहब, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 आ जाएगा सोडियम के बिलो साइड में, मतलब Na2 ऑक्सीजन का सिंगल, तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। इस तरह से हमने क्या किया, मेटल के ऑक्साइड्स को बना लिया। और ये जो फार्मूला का क्या बोलेंगे हम लोग इसको, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, चलिए कुछ और करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, वैलेंसी 2 वैलेंसी 2, यहाँ थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, आप ध्यान दीजिएगा। अब आप क्या लिखेंगे, Mg2O2। एक्चुअली मैग्नीशियम के एक एटम को एक ऑक्सीजन चाहिए कंप्लीट करने के लिए इसकी वैलेंसी, पर यहाँ 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन है, तो इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं इस तरह से। इसको हम लिख सकते हैं MgO या फिर 2MgO। ठीक है, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो जो इसके नीचे वाले डिजिट होते हैं, अगर किसी सिंपल नंबर से कट रहे हैं, ये फ्रैक्शनल नहीं आने चाहिए कटने के बाद, तो आप उन्हें कट करके जो आंसर आएगा लिख दीजिए। जैसे ये 2 था तो ये 2 से कट जा रहे हैं, 2 × 2 2 × 2, तो यहाँ पे आपने देखा किस फॉर्म में लिख दिया, MgO। एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आने वाला है। कैल्शियम ऑक्सीजन, इसकी भी वैलेंसी होती है 2, वैलेंसी 2, तो ये आपका आ जाएगा Ca2O2। अब देखिए 2 2 से कट जाएगा तो क्या बनेगा, CaO। ये आपका क्या है, मेटल ऑक्साइड। एक और ऑक्साइड ले लेते हैं हम लोग, वो ऑक्साइड लेते हैं एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। अगर आपको एल्युमिनियम की वैलेंसी पता करना नहीं आता तो आप पिछला वीडियो देखिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो यहाँ से थोड़ा सा हिंट आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, जो आपके लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 है, 4 से कम है तो वही वैलेंसी है, ज़्यादा है तो 8 में से वही इलेक्ट्रॉन का नंबर आप माइनस करके वैलेंसी ला सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा Al2O3, एल्युमिनियम का ये ऑक्साइड आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने ऑक्साइड का फार्मूला जनरेट कर लिया बहुत ही आसान तरीके से। चलिए देखते हैं ये कटता है क्या, ये 2 ये 3 किसी सेम डिजिट से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, या फिर आप कॉल करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, नोट्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है वीडियो फास्ट स्लो करके आप इसको नोट बना लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अगली हमारी थर्ड हेडिंग है फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड फ़ोन आ गया, गुरु कट गया मेरा वीडियो ही, फ़ोन आ गया था। चलिए फिर से पढ़ाते हैं। फ़ोन ऑफ फ्लाइट मोड में नहीं लगाया तो फ़ोन आ गया। चलिए, कटेगा नहीं, फ्लाइट मोड नहीं लगाए थे? नहीं, आवाज़ ये भी आ रही थी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फार्मूला ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, या किसी हाइड्रोक्साइड के फार्मूले के बारे में। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से मुझे वीडियो रोकनी पड़ी, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ हमने लिखा फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक्चुअली हमें पता क्या है, ऑक्सीजन की जो बैलेंसी होती है 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। इसका मतलब अगर कभी भी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कितना जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे 1 ऑक्सीजन से। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड होता है उसका फार्मूला होता है OH। इसका मतलब इसके पास एक बैलेंसी खाली रह जाती है। जैसे कि ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, एक तो आपने हाइड्रोजन से जोड़ दिया, दूसरी बैलेंसी खाली होती। मतलब जो हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड है इसका जनरल जो फार्मूला होता है OH- होता है। मतलब कि इसकी बैलेंसी हमेशा कितनी है, 1 है।
चलिए देखते हैं कि किसी मेटल हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं। जैसे हमने ले लिया सोडियम या फिर ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मेटल हाइड्रोक्साइड बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी लिखनी होगी। इसकी वैलेंसी हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कितनी होती है, वैलेंसी इसकी होती है 1, जो कि आपको अभी हमने प्रूफ किया, वैलेंसी 1 हो गई। तो भाई इसकी जो वैलेंसी है इससे क्रॉस कर देंगे तो क्या आएगा, MgOH होल ट्वाइस आ जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं। जैसे कैल्शियम के केस में इसकी भी वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्साइड वैलेंसी 1 होती है, -1 लगा सकते हैं, लेकिन वैलेंसी के केस में हम लोग माइनस प्लस नहीं करते। अगर चार्ज देखेंगे तो उसको हम काउंट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपके लिए नहीं है, क्लास 11-12 के लिए है, तो अभी हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। चलिए आ गए हम यहाँ पर। तो ये आपका क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। कुछ और एग्जांपल स्पेशल करते हैं। एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो इसकी वैलेंसी 3 होती है 2, तो क्या बनेगा, AlOH थ्राइस, Al2OH का होल थ्राइस। देखिए यहाँ पे 2 है, हमने क्रॉस किया तो क्या आया, Al2, और OH होल थ्राइस मतलब यहाँ 3 टाइम वैलेंसी थी, तो इसके होल थ्राइस मतलब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखने का मतलब सिर्फ OH का ही होल थ्राइस है, एल्युमिनियम का नहीं है। इस तरह से आप और भी कंपाउंड्स के हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने बनाते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए एक नया फार्मूला जनरेट करते हैं, जो हमारा होगा फार्मूला हैलाइड। एक्चुअली जो हैलाइड्स होते हैं ये हमारे 7th ग्रुप के मेंबर होते हैं, 7th B ग्रुप के। पर अगर आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं है तो आप ग्रुप मत ध्यान रखिएगा, ये एलिमेंट ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एंटीमनी रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम लोग इसको लेंगे नहीं। चलिए अब पहले तो हम बात कर लें इन लोग का जो बैलेंसी होगा वो कैसे निकालेंगे या फिर कितनी होगी। तो फार्मूला बनाना तो आसान है। बैलेंसी के लिए कोई एक एलिमेंट ले लेते, सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप के, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स की बैलेंसी 1 होगी। फ्लोरीन अभी हमने निकाला था, एटॉमिक नंबर 9, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 7, ये नंबर 4 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे 8 - 7, बैलेंसी आ गई 1, मतलब इन सब की बैलेंसी 1 होती है, ठीक है। चलिए बात कर लेते कुछ फार्मूला बना करके। जैसे हम बना रहे हैं मेटल हैलाइड। जब मेटल हैलाइड का हम फार्मूला बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, कोई मेटल लेना होगा, साथ में हैलाइड में क्या कोई हैलोजन लेना पड़ेगा, और उनकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग उनको कंबाइन करा देना है, तो आपका सीधा सा फार्मूला बन के आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे हमने लिया फ्लोरीन, इसकी वैलेंसी कितनी थी 1, हाइड्रोजन अभी आपने पढ़ा वैलेंसी 1, आपने क्रिस क्रॉस किया तो क्या आया, HF आ गया। तो देख रहे हैं ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बन के आ गया। ये चीज़ होता है आपके हाइलाइट के केस में। अगला एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन, हाइड्रोजन के साथ ही लेते हैं, दोनों की वैलेंसी 1 है, तो क्या बन गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं, Br, ब्रोमीन ले लेते हैं, इसकी भी बैलेंसी 1 होती है, क्रिस क्रॉस मेथड से लगा देंगे तो क्या बनेगा HBr। ये हाइड्राइड वाले फार्मूले से भी आप इसको बना सकते हैं। अभी आपने हाइड्राइड पढ़ा था तो सेम कॉन्सेप्ट लगा करके बना सकते थे। तो चाहे आप इसको हैलाइड बोलें या फिर इसी का हाइड्राइड बोलें। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन से मिलके बना, हैलाइड मतलब हैलोजन से मिलके बना, सिंपल सी बात है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। आगे कुछ और भी फार्मूला है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। आप इस पर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जो एक्सरसाइज में दिया गया है। नहीं आता तो आप कमेंट में लिखिए या फिर अपने ग्रुप में व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।